डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. Function means some relation between y and x, that's called function. Example, one function is y is equal to x square, y is equal to sin x. So y versus x, this graph will be a parabolic graph. अब इस फंक्शन में जैसे जैसे एक्सचेंज करते जा रहे हैं x0 y0 x1 then y1 x2 then y value is 4. X को increase करेंगे x1 to x2, the y value is changing from y1 to y2. So if we calculate the rate of change, it is called average rate of change of y with respect to x. Delta y is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, so differentiation means rate of change of y with respect to x. But ये differentiation नहीं है क्योंकि ये किसी दो पॉइंट के बीच में है. This is the average rate of change of y with respect to x. इसका मतलब x1 से x2 के बीच में what is the rate of change of y with respect to x? तो ये दो पॉइंट के बीच में. If this is called average rate of change, then this is rate of change of y neither at x1 nor at x2. ये x1 से x2 के बीच का change है, which is represented as delta y by delta x. इसको हम लिखेंगे y2 minus y1 by x2 minus x. Now, if we have to find the rate of change of any function or any quantity at one particular instant of time, maybe at this position x, maybe at this position of x. अब यहाँ पर अगर हमें rate of change कैलकुलेट करना है, now change is again between two different points. लेकिन जब हम दूसरा पॉइंट लेंगे then that point will be taken so close means it will be almost like x only. तो दूसरा पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है x plus dx. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है that is a very 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 small distance called as dx. Corresponding change in y is dy. Corresponding change in y is also dy. ये जो dx है, dx का मतलब क्या हुआ? This is a very 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 small change, also called as instantaneous rate of change. अगर हमें सपोज x इक्वल्स टू 2 पे इस फंक्शन का चेंज निकालना है, चेंज एट पोजीशन x इक्वल्स टू 2, तो हम एक पॉइंट तो लेंगे 2 एंड द अनदर पॉइंट विल बी टेकन एज क्लोज एज पॉसिबल. मतलब 2 के बाद 2.00000001. सो दिस dx इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0. अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y कैलकुलेट कर रहे हैं with respect to x, then this delta y become dy and delta x will become dx. So जब delta x की value tending to 0 होगी as small as possible, then delta x is represented as dx और उसके corresponding y की value भी it will also become dy. dy is very small change in y, dx is very small change in x.
dy by dx is called instantaneous rate of change of y with respect to x, और इसी को हम बोलते हैं y का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कब करना होता है हमें, जब हमें किसी क्वांटिटी में बहुत छोटे से इंटरवल में, और फॉर वेरी स्मॉल चेंज वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे हम निकाल रहे हैं स्पीड। सो एक घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। किसी एक पॉइंट पर किसी एक टाइम पे एग्जैक्टली लेट्स से 9:30 AM, व्हाट वाज योर स्पीड इफ यू इन 7 to 10। ठीक है, सो आप कार ड्राइव करते हैं, स्टार्टिंग में व्हेन यू स्टार्ट इट्स वेलोसिटी इज 0, then when you accelerate velocity increases, then you decelerate, then velocity decreases, and so on, right? Similarly when we cross similarly when we move on this any path, at every point instantaneous speed is changing, क्योंकि उस जगह पर जो हम इंटरवल ले रहे हैं that interval is very 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 close, तो वो दो अलग अलग पॉइंट ना बनके that will become the same point, that becomes exactly the same point, which is very very small। किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है। लेट्स से अगर हम टाइम की बात करें, दिस इज 9 AM, दिस इज 10 AM, व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी। 9 से 10 के बीच में आपने 5 किलोमीटर की सपोज 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, टाइम टेकन इज 1 hour, योर एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट एग्जैक्टली एट 9:30 व्हाट वाज योर स्पीड, व्हाट वर योर स्पीडोमीटर शोइंग, उसके लिए हमें 9:30 और 9:30.00001 जस्ट नेक्स्ट टू इट, उन दोनों के बीच का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ये हो गया डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी फंक्शन के फॉर अ वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर उसका रेट ऑफ चेंज क्या है। डिफरेंशिएशन हम कहाँ यूज करेंगे, जब भी हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना हो तब। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, instantaneous rate of change is decided by the that particular location, correct? अब इसको अगर हम ग्राफ से कैलकुलेट करके करने की कोशिश करें, ये क्या है, x2 minus x1 is this base, y2 minus y1 is this perpendicular। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का tan थीटा हो गया। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस बिकम्स tan थीटा। एवरेज रेट हमेशा हमें मिलेगी कैसे, अगर हम उस ग्राफ में दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कैलकुलेट करें। सपोज हमें ए और बी के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, हम उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे और उस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दैट गिव्स एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर एवरेज स्पीड की बात करें। बट एवरेज हमेशा दो अलग अलग इंटरवल्स के बीच में होगा, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में होगा। इंस्टेंटेनियस इज एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। यहाँ पर अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, अ वेरी वेरी स्मॉल ट्रायंगल। इसको जूम इन करके देखेंगे तो इसका बेस आ जाएगा dx, परपेंडिकुलर आ जाएगा dy, एंड dy by dx is this tan theta। इंटीग्रेट दिस, सॉरी डिफरेंशिएट दिस, तो ये इस लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे, ये लाइन क्या बन गई, दिस लाइन इज ए लाइन विच टचेस द कर्व। कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को हम बोलते हैं टैंजेंट, और इस टैंजेंट का स्लोप होगा tan थीटा। सो ये एंगल थीटा here will also become tan theta। डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज, और इसको ग्राफ में कैलकुलेट करने के लिए जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन इज यूज्ड जब हमें किसी भी फंक्शन का, किसी भी क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब ओनली फॉर अ वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? गॉट इट? Yes, sir. तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? देयर इज सम फॉर्मूलाज, और जिन फॉर्मूलों का डेरिवेशन मैथ्स में भी नहीं है, यू हैव टू यूज डायरेक्टली फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन इज x टू द पावर n। अगर हम x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, चाहे n पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये फर्स्ट फॉर्म है फंक्शन का, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ, सिमिलर यह पीसीएम और यह पीसीबी। Sir, I have PCM. PCM. So you are comfortable around maths. Yeah. Okay, fine then. रूट एक्स को हम पावर में क्या लिखेंगे? x टू द पावर 1/2. Half. सिमरन, स्क्वायर रूट को पावर में क्या लिखते हैं हम? Sir, half. 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 So now if you compare the formula, n is half, so it become half x to the power half minus 1. Amog? Okay, that become 1/2 root x. d by dx of 1 by x, 1 by x को पावर में लिखेंगे तो कितना आएगा? x to the Minus power 1. minus above. What will be differentiation of this? So Above? minus 1 x to power. So Minus- minus 1 x to power. Yes, sir. x to the power minus 2, minus 1, so that become minus 1 by x square. डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें सिर्फ पावर कंपेयर करना है। अगर कई सारे टर्म हो, d by dx of let's say 2x cube plus 5x square plus 3x, so इसमें हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जो प्रोडक्ट मल्टीप्ले में है, कोफिशिएंट, उसको बाहर निकाल लेते हैं। 2 times d by dx of x cube plus 5 times d by dx of x square plus 3 times d by dx of x. ये आ जाएगा 2 into 3x square plus 5 into 2x plus 3 into x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1. 1, तो ये पावर है 1, so it will be 1 into x to the power 0 and power 0 is 1. 6x square plus 10x plus 3. डिफरेंशिएशन के लिए मेन फॉर्मूला होता है x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1. Second formula, differentiation of any constant function is always 0. हम इसको और बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हमें जो फॉर्मूलेस की जरूरत है वो सिर्फ यही एक दो फॉर्मूलेस हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर डज नॉट चेंज, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये कहाँ से है अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में एक दो बार शायद बताया जाएगा, अदरवाइज you have to just learn it. It is called limit of sums. d by dx of cos x, differentiability है कुछ करके, cos x का differentiation minus sin x. These are the formula and those formula you are supposed to learn. Sin x differentiation cos x, cos x differentiation minus sin x.
tan x differentiation is sec square x. सब अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे आपको याद करने के लिए. d by dx of ln x. अब ln क्या होता है? ln का मतलब होता है log on the base of e. log क्या होता है हम अभी समझते हैं अभी थोड़ी देर में. log is a mathematical function which is used to calculate very large or very small numbers. ln x is called natural log. चलो अभी कर लेते हैं बस क्योंकि आपने सीबीएसई में पढ़ा नहीं है log. नेक्स्ट है log किस लिए बनाया गया, log को क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज log. तो पहले हम थोड़ा सा log देखेंगे and then we will come back to the logarithmic functions. So log क्या, log is just a scale, very large or very small. दो तरह की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए there is another method designed by John Napier called as logarithmic scale. बहुत बड़ी क्वांटिटीज को या बहुत छोटी क्वांटिटीज को हम कुछ ऐसे पावर में लिखते हैं लाइक 10 to the power 12, 10 to the power 10. अगर बहुत बड़ी क्वांटिटीज है तो पॉजिटिव पावर होती है, अगर छोटी क्वांटिटीज है तो 10 to the power minus 10 to the power minus 8, minus 10, minus 6, like that. Now इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड है which is called exponent method. This method is called exponent method. जब हम इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं, any very large big number or very small number. इसमें बेस क्या है, a is called base and x is called exponent. exponent या पावर जो भी है that is x. Same number can be represented in logarithmic scale. ये exponent form है, इसका जो logarithm form होगा that will be the same number can be written as log b on the base of a is equal to x. This is called logarithm form, logarithmic form. Both are interconvertible. a is base, a raised to power x is b. a is base, x is exponent, उसकी power जैसे like for example 2 to the power 5 is 32. ठीक है, 2 raised to power 5 is 32. इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, log of 32 on the base of 2 is 5. These are same thing represented in two different forms. a raised to power x equals to b. So log b on the base of a is equal to x. This is one form called as exponent form. Another form is logarithmic form. They both represent exactly the same calculation. So every log we need to specify its base also. जैसे यहाँ पे log में base क्या है 2. हम नंबर लिखते हैं log let's say 10 cube. 10 cube is 1000. So इसका मतलब log 1000 on the base of 10 will be written as 3. Right? अब logarithmic function log use करने से calculation easy कैसे हो जाती है, because there is a whole table given for calculation of log. log की और फिर log के बाद anti log करने की दो values. So we have a whole series table given. उस टेबल से हम देख के log की वैल्यू निकाल लेते हैं, log से एंटी log की निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन बिकम इजी, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में भी. And I will also teach you how to check the log table and how to use log table, but अभी उसकी जरूरत नहीं है. So as of now we'll restrict only to this part.
लॉग का मतलब क्या है? लॉग इज जस्ट अ स्केल। बहुत सारी चीजों में लॉगरिथमिक स्केल यूज होता है, जैसे वन ऑफ देम इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू, जो आपने शायद सुना होगा या पढ़ा होगा और अभी पढ़ोगे भी आगे। लॉग इज log of hydrogen ion concentration with a minus sign is called pH. तो pH वैल्यू 7 है या 7 से ज्यादा है, 7 पे न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक, समथिंग लाइक दैट। ऐसे जो साउंड की इंटेंसिटी होती है, साउंड जब धीरे धीरे सुनाई पड़ती है स्टार्टिंग में, इट्स विस्पर और नॉर्मल साउंड, और जैसे जैसे साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, तो लाउडनेस लेवल, साउंड की इंटेंसिटी लेवल को मेजर करते हैं डेसिबल में, which is also on the logarithmic scale. So there are many quantities which grow or which increases on the rate of logarithmic scale. तो उनके लिए logarithmic scale अलग से define किया जाता है। अब सर इसके कितने केसेस होते हैं लॉग के? हाँ बेटा, कितने केसेस होते हैं इसके लॉग के? कितने बना लो बेस पे, बस बेस जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। बेस ऑफ लॉग कैन नॉट बी जीरो, इट अगर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, अच्छा, लेकिन जो हम यूज करते हैं, अगर इफ यू वांटेड टू आस्क दिस, हम जो यूज करते हैं, हाँ वही हमारे लिए जो यूज नंबर करते सिस्टम कौन सा है? हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? विच नंबर सिस्टम वी यूज फॉर काउंटिंग और कैलकुलेशन? हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसका नाम क्या है? मेट्रिक। डेसिमल नंबर सिस्टम। तो शायद पढ़ाया जाता होगा छोटे क्लास में, हाँ, लेकिन खैर ध्यान नहीं होगा। देवर्ग, Yes, sir. we use decimal number system. What is decimal number system? So can't tell the correct definition. Okay, very good. मशीन यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें केवल 2, 0 और 1 इनपुट होता है। हम जो यूज करते हैं नंबर सिस्टम, उसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। और इसमें हर एक डिजिट पे 10 वैल्यूज आ सकती हैं, सो दैट बेस ऑफ अवर नंबर सिस्टम इज 10। अभी कुछ बचपन की यादें आएंगी शायद। जैसे नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से 2, 3, 5, 7, 8। आचमन, Yes, sir. मिस्टर आचमन, कुछ बचपन में ऐसा पढ़ा था, याद है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है इसमें? 1000. 1000। चलो याद है, वेरी गुड। सो हमारे नंबर सिस्टम पे, हमारे मतलब जो हम ह्यूमन यूज करते हैं फॉर द काउंटिंग एंड ऑल, इसमें नंबर्स ग्रो करते हैं ऑन द बेस ऑफ 10। इस नंबर को एक्सपैंड करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? 8 इंटू, जिसको हम यूनिट बोलते थे, दैट इज 10 टू पावर 0। यूनिट के बाद टेंस, देन 100, देन 1000 एंड 10,000। जैसे 10 की पावर में ग्रो करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, हमारी जो काउंटिंग का बेस है, दैट नंबर सिस्टम बेस इज 10 एंड इट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, because each digit can have 10 possible values, इसलिए वो 10 के मल्टीपल्स में हमेशा इंक्रीज होता है। सिमरन, ये समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो अभी हम थोड़ा फिजिक्स से थोड़ा सा हट चुके हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो देखो, इस कोर्स में या द माय वे ऑफ टीचिंग इज, हम जो भी पढ़ रहे होंगे उसकी ना ओवरऑल क्लैरिटी जरूरी है, रादर देन टॉपिक खत्म करने के लिए। सो आई जस्ट वांट कि जो भी समझ में ना आए, यू हैव टू क्लैरिफाई। जैसे लॉग इज नॉट इन द सिलेबस, बट बार बार हम लॉग यूज करेंगे। अभी लॉग एक डिफरेंशिएशन में आ गया, कभी सुना ही नहीं है, जबरदस्ती रटने से कोई फायदा नहीं होता। सो दैट इज व्हाई we need to first understand what exactly is log, what is the use of log, और हम उसको यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया। कहाँ करते हैं लॉग को यूज? बहुत सारी एक नंबर प्रैक्टिकल पे, हाँ। मेजरमेंट में उसका स्केल बनाने के लिए, जैसे सॉल्यूशंस की एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए, साउंड के नॉइज लेवल के लिए, नॉइज पोल्यूशन के लिए,
हम उन सबको लॉगरिथमिक स्केल पर डिफाइन करते हैं ऑन द लॉग स्केल दैट नंबर ग्रोज। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ लिया हमने। इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन सर्टेन बेस, और वो बेस डिसाइड करेगा कि हम कौन से नंबर पर लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जो हम नॉर्मली नंबर यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए लॉग यूज करेंगे, दैट विल बी ऑन अ डेसिमल लॉग। अरन, यस सर। हम जो कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं तो हम अपने कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे होंगे ऑब्वियसली। हमारे डिजिट जो भी है 2 3 4 5 एनी नंबर, व्हेन वी कैलकुलेट we have to see, we have to check that whether it is possible for us to calculate or not। तो उसका जो बेस होगा that base will always be 10। अगर कोई बेस मेंशन नहीं है, if there is no base mentioned, then आप उसको assume कर सकते हो that it is for our calculation and that base will be 10। base of logarithm is the same base जिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, which is 10, right? अगर सिर्फ log x लिखा हुआ there is no base mentioned, that simply means the base is going to be 10। और जो भी हमने ln x लिखा हुआ था पीछे, ln x का मतलब होता है log on the base of e, where e is exponential constant। एक्सपोनेंशियल एक सीरीज होती है मैथ्स में, उसमें x की वैल्यू 1 डाल दोगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आ गया। When you put x equals to 1, e की वैल्यू होती है 2.716। E is 2.161, this is an exponential irrational number, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। Why it is called natural log, उसकी अलग स्टोरी है, क्योंकि इसमें जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उन सबका बेस ई होता है। नेचुरल प्रोसेस जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ, सो तो बैक्टीरिया ग्रोथ में लॉगरिदम का क्या कनेक्शन है? बताता हूँ बेटा। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं they all grow on the base of E, right? इसका मतलब जैसे पहले दिन अगर बैक्टीरिया है E, नेक्स्ट डे में भी E स्क्वायर, E क्यूब, E4। so bacteria growth, photosynthesis, radioactivity, all the natural processes they occur or they grow on the base of E। इसीलिए इसके बेस को जो लॉग को हम लेते हैं that is called natural log, right? समझ गए क्या यस सर। देवर्गे? यस। नेचुरल नंबर को नेचुरल क्यों बोलते हैं? Why natural number are called natural numbers? सब नेचर में होता है। नेचर में होते हैं, नेचर में होते हैं। What is natural about natural numbers, Simran? Sir, can you repeat? नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों बोलते Maybe because they are the counting numbers. हैं? Because they are Counting numbers, like the things around us, we can count them. उसका नेचर से क्या कनेक्शन है, मतलब लाइक समझे नहीं।
Sir, maybe because they reuse the most. They are used the most, not Hmm. necessarily, cannot say. तो नेचर से क्या कनेक्शन है, उसको हम नेचुरल चीजों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. काउंटिंग तो करते, किसी की भी काउंटिंग कर सकते हैं, नेचुरल, डेड, स्टोन, कुछ भी करो. बट नेचुरल चीजों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बाय नेचुरल ऑब्जेक्ट वी कैन रिप्रेजेंट ओनली नेचुरल नंबर. जैसे 2 ट्री, 3 ट्री, 2.5 ट्री के लिए आपको अननेचुरल करना पड़ेगा, आपको एक को कट करना पड़ेगा. 1 ट्री यू हैव टू डिडक्ट हाफ. Right? Natural numbers are natural because with the help of natural numbers or with the help of nature they can be represented. Zero हम represent नहीं कर सकते nature में. Like you cannot say there is a zero tree in a garden. There are zero anything in the garden, है ना? So similarly natural number का जो natural connection है वो क्या है, जितने भी natural process होते हैं, all natural process उनका base, उनकी growth का जो base होता है, जैसे natural process occur at the base of E. जो उनकी ग्रोथ की रेट होती है, फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया फॉर्मेशन, रेडियो एक्टिविटी, फर्मेंटेशन, दे ऑल अकर ऑन द बेस ऑफ एल ई, इसीलिए हम उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं. तो ये तो चलो डेफिनेशन हो गई कि लॉग है क्या, लॉग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और लॉग का कैलकुलेशन क्या है. राइट? Yes, sir. ओके. कैलकुलेशन के लिए लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं. पहला फॉर्मूला तो हम लॉग m इंटू n, जो भी बेस है, सपोज बेस इज a, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉग में वो ऐड हो जाता है. इट बिकम्स लॉग m प्लस लॉग n, ऑब्वियसली ऑन द सेम बेस. लॉग m इंटू n इज लॉग m प्लस लॉग n. अगर डिवीजन का लॉग ले रहे हैं, लॉग m डिवाइडेड बाय n, it will be log of m on the base of a minus log n on the base of a. पहला एडिशन के लिए, दूसरा डिवीजन के लिए. पावर के लिए log a m to the power n will be n log m to the base a. जितने टाइम्स पावर एक्सपोनेंट होगा उतने टाइम्स आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट इज बड़ा समझ आ रहा है ना ये. जैसे log 6 को लिख Yes. लेंगे 3 into 2, दैट बिकम log 3 plus log 2. जो भी बेस है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब बेस इज 10. So these are the three formulas for log calculation. इसके अलावा एक होता है बेस चेंज फॉर्मूला. अगर हमें बेस चेंज करना है, log b on the base of a will be log b on the base of c divided by log a on the base of c. This is called base change formula. These are the four formula that we use for the calculation of log. Calculation using log. Tarisha, Yes, sir. you might have done this. Yeah, I have done this. Yeah. Okay. Log को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ ये बेसिक से फॉर्मूले यूज करते हैं. If this base is 10 on both the side, then we don't mention that base. That is understood. Base is 10. Sir, how did Log, C come in the fourth case? how did C as the C is base. some other base? This is base change formula. Suppose base 10 और हम उसको E में change कर रहे हैं. Like we want to change log x on the base of 10. It will be log x divided by log of E. इधर बेस राइट साइड में मेंशन नहीं है, इसका मतलब बेस इज 10. Okay. Which comes out 2.303. So this is the relation between natural log and
log on the base of 10. हम थोड़ा भटक गए थे कहाँ पे, log का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, but then we tried understanding राइट. सो log का डिफरेंशिएशन क्या था, अभी हम log के डिफरेंशिएशन पे वापस आ जाते हैं. log बोले तो that will be log of x on the base of e. This is not for the base 10. नेचुरल log को डिफरेंशिएट करने पे आएगा आंसर 1/x. फाइन. Yes. नेक्स्ट फॉर्मूला. तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक मैथ हम साथ में पढ़ते जा रहे हैं, जहां जहां यूज होती जाएगी वी विल बी डूइंग दिस. e to the power x, e वही नंबर है 2.716. दिस इज आल्सो इक्वल टू e to the power x. तो ये 7 कुछ बेसिक से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं जिनको हम यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. इसके अलावा मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले आप पढ़ोगे. Yes, sir. This was 8th, na, not 7th. हाँ बेटा, This was 8th formula, na, not 7th. ये 7th ही होगा ना, ये दोनों तो सेम ही है. ln को ही नहीं ओपन नहीं, करके अब लिख वो दिया था. तब भी 8th हुआ ना वो. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ. अच्छा, okay. This is exponential number or exponential constant. अब इसके अलावा जो फॉर्मूलेज हमें जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, that will be product rule and division rule. ठीक है. Product rule मतलब if there are two functions multiplied first and then we are finding its differentiation. बीच में हमने log समझा. What is log? Log is a calculation tool, mathematical scale, जिसके ब्याह पे हम बहुत बड़ी या बहुत छोटी quantities को easily calculate कर सकते हैं. And it is also used to represent many natural phenomena. Acidity, basicity of any liquid solution. Similarly, the sound, noise, pollution level, and all that is also expressed in the log. Calculate करने के लिए we have these basic formulas. Next is formula number 8. ये अब हम वापस आ गए डिफरेंशिएशन के लिए. डिफरेंशिएशन करने का प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल मतलब we have two functions multiplied together, f multiplied by g, और इसके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है. This will be first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. This is the formula for differentiation of product of two functions. Right? Product के लिए first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. तो डिवीजन में माइनस हो जाएगा. हाँ बेटा, डिवीजन में फिर माइनस हो जाएगा ना. उसका फॉर्मूला अलग. थोड़ा सा उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब. इट विल बी x क्यूब. sin x का डिफरेंशिएशन था cos x, ये पीछे फॉर्मूले में लिखा हुआ है. sin x का डिफरेंशिएशन cos x
प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले फॉर्मूले से अप्लाई करोगे तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, दिस बिकम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स. Right? So when we differentiate product of two function, first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. Another example, d by dx of x into e to the power x. First function differentiation of second plus second function into differentiation of first. X e to the power x का differentiation e to the power x आ जाएगा plus e raised to power x और x का differentiation 1. This will be x plus 1 times e to the power x. So why did it change to 1? Yeah. Navya, you are getting this? Yes, नव्या, sir. अच्छा ये x का 1 क्यों हो गया? देखो एक तो तरीका ये है कि हम वो फॉर्मूले से कंपेयर कर लें. If it is x, then power is 1. X means x to the power 1. Yeah. It will be n x to the power n minus 1. That become x to the power 0. Any number to the power 0 is 1. Oh, दूसरा yeah. तरीका ये d of x नीचे भी आ गया, dx कैंसिल हो जाएगा. That is also equal to 1. Right? Yes, sir. ओके. जब भी हम फंक्शन को डिफरेंशिएट, किसी फंक्शन को उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज डिवीजन रूल. डिवीजन रूल और एक्सपोनेंट रूल, क्वोशिएंट रूल. सो if we have to differentiate division of two functions, f divided by g, f is numerator, g is denominator, it will be g into differentiation of x minus f into differentiation of g, means denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided by denominator square. This is the formula. So इसमें एक नीचे g square extra आ गया, like d by dx of sin x by x. इसमें f है sin अरे x. फॉर्मूला की कोई डेरिवेशन होती है? होती है बेटा, मैथ्स में भी करते नहीं है, मतलब इन द सीबीएसई इट्स नॉट देयर. डेरिवेशन होती है, मैथ्स में करोगे आप. अच्छा ठीक है. इसमें f is sin x, g is x, so ये आ जाएगा x into d by dx of sin x minus sin x into d by dx of x divided by x square. Right? तो ये हो गया x cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. इसकी जरूरत हमें पढ़ने नहीं वाली है, वैसे तो मोस्टली यूजली अभी नहीं पढ़ने वाली है.
राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद एक और रूल होता है, दैट इज देयर इज वन लास्ट फॉर्मूला जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, एंड दैट इज फॉर that is called chain rule. Chain rule is for जब भी किसी फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन आ जाए. So मैं एग्जांपल से समझाता हूँ व्हाट इज अ चेन रूल. अभी हमने जितने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े, sin x, cos x, tan x, x की जगह पे कोई नया सा फंक्शन आ जाए, जैसे sin के अंदर आ जाए x क्यूब. इट इज नॉट sin क्यूब x, इट इज sin ऑफ x क्यूब. हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है sin x का, sin x का डिफरेंशिएशन cos x. बट sin x क्यूब को हम डायरेक्टली cos x क्यूब नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फंक्शन में दिस इज नॉट. बेटा ये समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस? दिस इज sin x, दिस इज sin x क्यूब. अब sin x क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करना है तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि sin x का तो हमें पता है बट x क्यूब का नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, इस x क्यूब को हम एक लीनियर फंक्शन ही अज्यूम कर लेंगे. सपोज x क्यूब इज t. अब ये बन गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ t. राइट? अब जैसे साइन इसका डिफरेंशिएशन x में कर सकते हैं, वैसे साइन t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं. तो इसको भी cos t लिख लेंगे. साइन इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x, साइन t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में cos t. इसको करने के लिए हमें dt चाहिए होगा. यहाँ there is no dt, so this again cannot be written as cos t. sin x का ds के रिस्पेक्ट में cos x, sin t का dt के रिस्पेक्ट में cos t. so यहाँ पर हमें dt लाना पड़ेगा. we'll multiply और divide by dt. Sir, t क्या है? ये हमने कुछ भी मान लिया, एक नया सा कुछ वेरिएबल. अच्छा. y मान लो, p मान लो. so we multiplied by divide and divide by dt. multiply and divide both by dt. d by dt of sin t into dt by dx. बेटा ये इस समझ में आया क्या? Yes, हमने इस पूरे फंक्शन में ऊपर और नीचे दोनों में dt dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dt. अगर कैंसिल करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम एज द प्रीवियस स्टेप. आ जाए निश्चय. Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. अभी ना भी बोल दिया करो यार, ना है तो. आ रहा है तो अच्छी बात है. क्या लिखेंगे फिर आगे बताओ? साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ dt के रिस्पेक्ट में, साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x, साइन t का dt के रिस्पेक्ट में cos t. cos t into d by dx of t की वैल्यू हमने वापस पुट कर दी. दैट बिकम x क्यूब. क्योंकि हमने t को एज्यूम किया था x क्यूब. सब्स्टिट्यूट बैक cos of x क्यूब into डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब. x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर. so cos x क्यूब into 3x स्क्वायर, दैट इज द फाइनल रिजल्ट. अब इसको चेन रूल क्यों बोला फिर हमने? व्हाट इज द चेन, वेयर इज द चेन हियर? ये थोड़ा मेथड जो है वो हमने एक के लिए प्रूव किया है, बट एवरी टाइम हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है. साइन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना था x के रेस्पेक्ट में. एक्स क्यूब को एक नया फंक्शन एज्यूम किया t, और फिर हमने वेरिएबल चेंज किया, dx को dt में बनाया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके. अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? अगर ये केवल साइन x होता तो cos x लिख देते. साइन एक्स क्यूब को cos x क्यूब लिख लेते हैं,
फिर जो भी फंक्शन x की जगह पे आया उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते, दैट इज द चेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, और फिर उस फंक्शन के अंदर जो भी नया फंक्शन आया हो, जैसे यहाँ पे x की जगह पे क्या आया, x क्यूब, सो मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट न्यू फंक्शन। x क्यूब के डिफरेंशिएशन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बिकम 3x स्क्वायर। तो अभी और एग्जांपल लेते हैं। एक तो तरीका ये है, दिस इज द एक्चुअल मेथड, जिसमें हम कुछ अज्यूम करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे, एंड देन वी गेट द फाइनल करेंगे जब x की जगह पे कोई नया फंक्शन आ जाए। इन प्लेस ऑफ x एनी अदर फंक्शन कम्स, तो हमारे पास चेन रूल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये दिस एग्जांपल इज क्लियर, Yes, sir. आराम से Yes, sir. टेक योर टाइम। तारिशा, Yes, sir. when there is a function in place of x, एक्चुअल में जहाँ x था, x की जगह पे अगर कोई नया फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं। we assume that function has a new variable t, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, नॉर्मली यूजुअली डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, एंड नाउ ऑन डिफरेंशिएशन, उस फंक्शन का जो भी साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे जो भी नया फंक्शन आएगा, दैट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएटेड एंड मल्टीप्लाइड अगेन, राइट। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है, लेट्स से हमें डिफरेंशिएट करना है। वैभव, ये समझ में आया? वैभव, वैभव, नॉट इन द मीटिंग, वेरी गुड। आचमन, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा, चलो अभी ये e टू दी पावर x की जगह पे आ गया, e टू दी पावर sin x। e x का डिफरेंशिएशन होता है e x, e x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x, राइट। अभी हमें यहाँ पे e टू दी पावर sin x करना है, x की जगह पर आ गया sin x। तो एक तो तरीका है कि हम sin x को t एज्यूम करें, स्टैंडर्ड फंक्शन आप साथ में लिख लो तो आपको कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ex, ये आपको याद नहीं होगा, आप पीछे से देख सकते हो। इट वाज ए फॉर्मूला रिलेटेड विद e रेज़ टू पावर x, राइट। Yes, sir. e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर sin x का करने के लिए हमने उसको एज्यूम कर लिया, दैट फंक्शन इज एज्यूम्ड एज t। सो इफ वी टेक sin x एज t, ये बन जाएगा e टू दी पावर t अपॉन dx। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे, नहीं दिख रही है? मतलब आप अगर लिख रहे हो तो फिर वो लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं दिखेगा, डोंट वरी। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। मैं आपको टाइम दे रहा था सोचने के लिए। हम अच्छा, इसमें मुझे लगा sin x दिख को रहा t है। लेंगे, d by dx ऑफ e टू दी पावर t हो गया, फिर से ऊपर नीचे dt dt मल्टीप्लाई एंड d by dt ऑफ e टू दी पावर t into dt by dx। ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, सो e टू दी पावर t का e टू दी पावर t हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को t को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे x के टर्म्स में, e रेज़ टू पावर sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x।
सो अब इसको हम डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, कंपेयर एक्चुअल फंक्शन में जहाँ x था वहां पर है e टू द पावर sin x। तो पहले तो उसको नॉर्मल x अज्यूम करके डिफरेंशिएट करना। ex का ex होता है, सो ex का ex, फिर x के प्लेस पे जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके चेन में मल्टीप्लाई, whatever function comes in place of x उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द चेन रूल। e टू द पावर x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। जब तक ये कंफर्टेबल ना हो यू हैव टू डू विद दिस मेथड। गलत करने से अच्छा है हम, ये sin x पावर में था और cos x नीचे मल्टीप्लाई में, e टू द पावर sin x into cos x। राइट? Yes, sir. नव्या, Yes, sir. क्या समझ आ गया ये? Yes, sir. अभी तो getting used to it also. हाँ, तो आप ये वो एग्जांपल धीरे एक धीरे बार सर करेंगे, जब प्रैक्टिस होगी ना और ज्यादा तो जब प्रैक्टिस होगी तो और ज्यादा आएगा। एब्सोल्युटली। सो sir, यस, you wrote x e to the power x into cos x. Shouldn't it be e to the power sin x into cos x? yes, thank you। It will be e to the power sin x into cos x। Okay, so I'm writing few more for you too. You can check the formulas from behind in your notes. Just try to figure out कि हमें करना क्या है। ln of sin x, take the formulas from the back। Sir, इसमें answer. किस फंक्शन को t एज्यूम है ऐसे बताना नहीं है। होल्ड, इस फंक्शन में हमें किसको t लेना चाहिए? So sin x. Sin x। sin x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by x. 1 by x। Where ln x differentiation is 1 by x, check। Sir, answer. Where ln x differentiation is 1 by x। Okay, सिमरन आपको कुछ आ रहा है समझ में? Getting it? Yes, sir. Okay, ln x differentiation is 1 by x. 1 by x. 1 by x। So हम ln sin x को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 by sin x, और फिर जो भी था यहाँ पे x की जगह पे उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। दिस वाज द डायरेक्ट मेथड। ln x is 1 by x, so ये आ गया 1 by sin x, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos। cos by sin को क्या लिखते हैं? Cot x. cot x। So that becomes cot x। Next, d by dx of sin cube x। ये पहले हमने एग्जांपल किया, दैट वाज sin of x cube। sin cube का मतलब क्या हुआ? sin x to the power 3। Sir, एक अब doubt है. हाँ बेटा बोलो। Sir, इसमें sin 3x का फॉर्मूला लगा सकते हैं? जरूरत नहीं है, लगा सकते हैं बट जरूरत नहीं है। Okay, sir. क्यों लगा रहे हैं? इसको हम चेन रूल से डायरेक्टली कर लेंगे, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा sin x का फॉर्मूला लगा के। It's better that we compare this with the standard function sin x cube, sin x whole cube। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था? x cube। हमें x cube का डिफरेंशिएशन पता है, दैट इज 3x स्क्वायर। बस यहाँ x की जगह पे आ गया sin x। सो जैसे x cube का होता है 3x स्क्वायर, वैसे sin x cube का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x। फिर जिसको हमने x की जगह पे अज्यूम किया है, that function should be differentiated and multiplied। You have to look for the equivalent standard formula। उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे and we will find out which function has replaced x। x की जगह पे कौन सा नया फंक्शन आ गया है, that function we will
दैट फंक्शन वी विल रिप्लेस, और उसको हम x के जैसा एज्यूम करके दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एंड विल मल्टीप्लाई इट. राइट? Yes, sir. So 3 sin square x into cos x. 3 sin square x into cos x. This is the result. Sin cube x का differentiation 3 sin square x into cos x. Next example. Differentiation of sin of 5x. Standard function होता है sin x. d by dx of sin x, that is cos x. sin 5x को लिख लेंगे डायरेक्टली cos 5x और फिर उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5x का डिफरेंशिएशन 5. So this will become cos 5x into 5. d by dx of e to the power x square. स्टैंडर्ड फंक्शन होता है e raised to power x. को डिफरेंशिएशन करने पे ex आता है. e raised to power x स्क्वायर का e raised to power x स्क्वायर, फिर x की जगह पे जो फंक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर. करेक्ट? सो अब Yes. इसका रूल लेते हैं. अभी हम सिर्फ एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं करना क्या है. जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं विल कंपेयर एंड विल फाइंड आउट x व्हिच फंक्शन हैज रिप्लेस्ड x, और x की जगह पे जो भी नया फंक्शन आया होगा उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. राइट? सो इफ अ फंक्शन appears in place of x, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज में जहां जहां पे x की जगह पे कोई नया फंक्शन अगर आ जाता है, डिफरेंशिएट नॉर्मली. नॉर्मली मतलब उस फंक्शन को x जैसा एज्यूम करके नॉर्मली यूजिंग द फॉर्मूला and multiply by differentiation of that function. Multiply by differentiation of that function. Multiply by differentiation of that function which appears in place of x. स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करना पड़ेगा और x की जगह पे कौन सा नया फंक्शन आ गया वो हमें फाइंड आउट करना है. पहले उस फंक्शन को x के जैसा एज्यूम करके नॉर्मल डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके डिफरेंशिएशन से पूरे रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे. द फाइनल रिजल्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द होल फंक्शन. रूल समझ में आ गया? रूल में क्या लिखा है? चेन रूल से डिफरेंशिएशन करने का मतलब हमें उस फंक्शन में पहले एक स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करना होगा. वी हैव टू फाइंड आउट द x which function has replaced x and accordingly we will find out उस फंक्शन का नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आएगा
उसमें x के डिफरेंशिएशन से उस फंक्शन से डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है द फंक्शन विच अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ x। ठीक है, अब ये तो मैंने कर दिया, अभी आपके लिए कुछ 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं मैं बिफोर द क्लास एंड्स। यू हैव टू okay example d by dx of ln of root x d by dx of cube root of square root of x cube plus 2। Third function is d by dx of cos x square। पहले फंक्शन में रूट एक्स है, एक्स की जगह पे उसको टी एज्यूम कर लेते हैं। सर डन। assume that t wait so ln t का 1/t इसलिए 1/√x और जिसको फिर हमने t एज्यूम किया होता है उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या करना है, x क्यूब प्लस 2 को t एज्यूम कर लेते हैं तो पावर रूट बिकम्स पावर हाफ। इट विल बी हाफ x क्यूब प्लस 2 टू द पावर माइनस हाफ और फिर जिसको t डिफरेंस एज्यूम किया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड फंक्शन था x टू द पावर हाफ, हम x क्यूब प्लस 2 को x की जैसा एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन cos x स्क्वायर का माइनस साइन x स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। माइनस साइन x स्क्वायर इनटू 2x। Is it same? यस। Yes, sir. Okay. Aryan, Yes, sir. हाँ कर लिए थे all three, understood? फर्स्ट सेकंड कर रहा था, फिर आपने थर्ड बता दिया उसी टाइम। Okay. Okay, very good. Achman, Yes, sir. done? Sir, this is not done. Sir, second बस कर रहा हूँ. Third आपने. समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay, very good. सर इनका आगे भी तो आंसर निकलेगा ना, मतलब आगे और स्टेप्स। आगे हाँ आगे निकलेगा, आगे तो मैंने छोड़ दिया, मतलब आई जस्ट
कंपेयर कि हमें x की जगह किसको लेना है, t किसको लेना है। 2 And- अपन रूट एक्स होना L- चाहिए So फर्स्ट 1/2x. फर्स्ट का क्या आएगा फिर आंसर 1/2x. मेरे 2 अपन 1/2 रूट x, तो बन जाएगा 1/2x। करेक्ट 1/2। So इसका 3x² 2 √x³ + 2. हाँ, इसको अंदर कर लोगे तो 3x², 2 का तो 0 हो जाएगा। राइट, और ये थर्ड करेक्ट। सर वो So- माइनस माइनस है ना ये। नहीं सर वो अच्छा। x so ठीक है, -1/2. ठीक, माइनस ना। राइट। So if we have SL Aurora, अभी हमने डिफरेंशिएशन किया है सिर्फ थोड़ा सा। We will revise more questions next class. Differentiation on page number 0.8 from the SL Aurora. If you have SL Aurora, then मैं भी ग्रुप में भी भेज देता हूँ ये क्वेश्चंस। पेज नंबर 0.8 exercise problem for practice for the differentiation. So tomorrow we will be understanding application of differentiation in error calculation. सिमरन को समझ में आया? Simran, Yes, sir. these three examples understood? Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप एक बार आराम से नोट चेक कर लेना जो भी इसमें प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज अ मैथ्स एंड मैथ्स टेक टाइम एज वेल एज प्रैक्टिस टू गेट कॉम्पिटेंस, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नव्या, you have SL Aurora, so you can see I have also shared the drive link in the group. If you don't have, you can download. डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, तो दोस क्वेश्चंस फॉर्मूलेज वी डिड एंड यस, ठीक है, चलो वेरी नाइस। ओके ओके, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम हियर। इसको रिवाइज कर लेना एंड देन चेक। इसमें जो भी समझ में नहीं आया वो सारे एग्जांपल हम दोबारा भी कर सकते हैं, टेक योर टाइम।